یہ کیمپس کا وہاں وجود جو ہے وہ دیامر کے عوام کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. پڑھا لکھا دیامر، ایک پرامن دیامر، ایک باشعور دیامر پوری گلگت بلتستان کے مفاد میں ہے. تو اسکول کا جو نظام ہے، اسکول کی جو تعلیم ہے پورے دیامر میں، پرائمری، مڈل، میٹرک، پھر آگے کالج، یہ بہتر جب تک نہیں ہوگا تو بچے اوپر کیسے آئیں گے؟ ہمارے دیامر کے بچوں کے لیے ایک اسپیشل پریویلیجز کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ہاسٹل فری ہو، ایڈمیشن فیس اور دیگر فیسیں وہ فری ہوں، اور ٹرانسپورٹیشن فری ہو، پلس اس کی مینٹیننس وغیرہ. اب وہاں فیکلٹی کا ایشو ہے تو لازمی بات ہے، اگر اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے، ایڈمیشنز نہیں لیں گے تو فیکلٹی کہاں سے آئیں گے؟ جب اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینے کی تعداد زیادہ بڑھے گی تو خود بخود تمام چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان کا ضلع دیامر کہا جاتا ہے پسماندہ ہے، اور چونکہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہیلتھ ہے، اور اس کے علاوہ قراقرم یونیورسٹی کا ایک کیمپس بھی ہے. معاملات بہت سارے ہیں سیاسی، البتہ اس کے اندر کوئی بات نہیں ہوگی. میرے مہمان ایک ماہر تعلیم ہیں، سماجی کارکن ہیں، شاعر بھی ہیں. ان کا انٹروڈکشن یہ بنتا ہے. دیامر چلاس سے ان کا تعلق ہے. حلیم فیاضی. فیضی صاحب، بہت شکریہ. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ دیامر کو پسماندہ کہا جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان میں ہم اگر کمپیئر کریں تو کہاں آپ دیکھتے ہیں پسماندگی میں دیامر کو؟ کیا یہ تاثر غلط ہے کہ نہیں واقعی ہے پسماندہ؟ سب سے پہلے تو میں شبیر میر صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا، IMN کا، میں مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اپنا معافی الضمیر جو ہے وہ سامنے لانے کا ایک اپرچونٹی مجھے پرووائڈ کی. جہاں تک دیامر کی بیک ورڈ ہونے کی یا اس کے پسماندہ ہونے کا، اس میں تو کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے کہ آج پاکستان کی جتنی بھی ڈسٹرکٹ میں سب سے اگر پسماندہ ہے تعلیمی لحاظ سے تو وہ دیامر ہے. اگرچہ قدرتی وسائل کے اعتبار سے دوسرے تیسرے اس میں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سے آگے بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم تعلیم کے شعبے میں پیچھے رہے ہیں شروع سے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، میں ان ریزن کی طرف نہیں جاؤں گا. صحیح. اس میں اس لیے بھی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ڈیم بن رہا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ جاب اپرچونیٹیز آ گئی ہیں، وابڈا آ گیا، فلاں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب پسماندگی اسی طرح ہے، یہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اب دیامر اور بادشاہ ڈیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی معاشی، آبی اور توانائی بحرانوں کے لیے کہ خاتمے کے لیے ناگزیر جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ، بین الاقوامی اہمیت کا حامل پروجیکٹ دیامر میں بننے جا رہا ہے. اور ہم مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک نئے پراسپرس، ڈیولپڈ اور سیلف سفیشینٹ پاکستان کے جو میزبان ہیں وہ دیامر کے باسی ہیں. اور اس کے علاوہ دیامر کو گلگت بلتستان کا گیٹ پہ بھی کہا جاتا ہے. وہ نیچرل ریسورسز کے اعتبار سے اگر دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز وہاں پہ ہیں، لیکن لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے، لیک آف نالجز کی وجہ سے وہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی دانشمندانہ اور منصفانہ تقسیمات بھی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کافی فرسٹریشن پائی جاتی ہے. اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے اور بیک ورڈنس ہے. صحیح. ایجوکیشن کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے. پہلے ذرا ہیلتھ کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کتنی سہولیات ہیں ہاسپٹل کا اس وقت، اس کی حالت کیسی ہے، اور اگر ہم سائٹس پہ جائیں، دار تنگیر وغیرہ ادھر ادھر، تو وہاں پہ سہولیات ہیں نہیں ہیں؟ ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ ایک پورا پرابلم گلگت بلتستان پورے میں ہیلتھ کا ایک ایشو ہے. جو لیٹسٹ اس وقت دنیا عالمی سطح پہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز اپنے سٹیزنز کو پرووائڈ کی جاتی ہے، اس پورے گلگت بلکہ پاکستان میں ایک ایشو ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیامر، پاکستان اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ہیلتھ سیکٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، زیادہ ضرورت ہے. صحیح. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیمپس ہے. جی، ہم نے دیکھا کہ کافی محنت اس کے اوپر کی گئی، اور لوگوں کا مطالبہ بھی تھا کہ یہاں پہ ایجوکیشن کی سہولیات نہیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ دی جائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا تعلق، آپ سماجی کارکن بھی ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کے مسائل ہیں کہ نہیں، یونیورسٹی اچھا چل رہا ہے؟ میں اس حوالے سے تھوڑی سی، آپ اگر ٹائم ہی جی پلیز، ان ڈیٹیل تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جہاں گلگت بلتستان میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سابق پریویس گورنمنٹ نے یہاں الاؤ کیا، یہ ایک نعمت سے کم نہیں تھی. پھر سابق گورنمنٹ جناب حافظ الرحمان صاحب چیف منسٹر، اور موجودہ جو VC صاحب ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب، اور انہوں نے سوچا کہ جہاں گلگت بلتستان میں گلگت جو صوبائی ہیڈ کوارٹر وہاں پہ یونیورسٹی بنی ہے، تو جو فار فلنگ ایریاز، جو ریجنز ہیں ہمارے تینوں
वहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए जाएँ ताकि वहाँ की जो हमारी तलबा और तालिबात हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो उनको डोर स्टेप पे जो हायर एजुकेशन है उनको डोर स्टेप पे अवेलेबल हो। ठीक है। सिकरदू कैंपस बना, हुंजा कैंपस बना, गजर कैंपस बना और दियामर कैंपस बना। सही। मैं पार्टिकुलर दियामर कैंपस के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, तो ये कैंपस का वहाँ वजूद जो है वो दियामर के अवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं है, जिस पर इस कैंपस के क़याम के लिए जिन जिन लोगों को मैंने अभी नाम लिया है वो सब मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सिकरदू अपने आप देखा कि सिकरदू कैंपस प्रॉपर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का दर्जा अख्तियार कर गई और कमिंग डेज़ में हुंजा का जो कैंपस है वो भी यूनिवर्सिटी का दर्जा अख्तियार कर सकता है और गज़र का कैंपस भी बड़ी कामयाबी से हमकिनार होने जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे दियामर में अभी तक कैंपस जिस मकदार से जिस रफ्तार से उसको तरक्की करना चाहिए था वो तरक्की क्या वजह क्या है? इसके एक से ज़ायद वजूहात हैं। चंद वजूहात तो ये हैं कि ज़ाहिर है कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो वहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से मुश्किलात तो हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ये है कि वहाँ लोगों के पास पैसे आ गए, ठीक है, तो उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान के दीगर शहरों में प्रोविंसेस में भेजना शुरू किया, यहाँ पर उन्होंने एडमिशन ले लिया। और दूसरी बात ये थी कि अब अगर ज़्यादा से एडमिशन ये कैंपस की कामयाबी का दारोमदार एडमिशन पे ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात उसमें एडमिशन ले लेंगे तो फिर फैकल्टी स्टाफ भी आ गई, फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाते हैं। ये डॉक्टर शाहनवाज साहब की जो एफर्ट्स थी शुरू में इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उनकी मेहनत के बावजूद भी अभी तक 300 तलबा ज़ेर तालीम है, जो टोटल मिला के 300 ख़वातीन मर्द सब, जो कि बहुत कम तादाद तो प्राइमरी स्कूल में होती है। इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि फीडिंग यूनिट्स नहीं, एक ही डिग्री कॉलेज है, अभी डिग्री कॉलेज अस्तौर भी है, डिग्री कॉलेज, इन दोनों से जो ग्रेजुएट के तलबा जो फारिग वो अगर एडमिशन ले ले वहाँ तो भी तादाद अच्छी खासी बढ़ सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नीचे का रुख कर लेते हैं। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में चंद दोस्तों की तरफ से एक खबर चलाई गई कि कैंपस को बंद करने का फैसला किया गया। मैं यही पूछना चाह रहा था, कोई ऐसी खबर सदाकत तो नहीं है ना इसमें? तो उसके बाद काफ़ी उसमें सरासनगी पैदा हो गई आवाम की तरफ से, बड़ा रद्दमला जो कि अच्छी बात थी। फिर यूनिवर्सिटी की वीसी साहब की जानिब से फिर मीर ताज़ीम अखलाक साहब ने उसकी वो तरदीद भी जारी कर दी, तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब इस हवाले से बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो करते धरते हैं सोशल सेक्टर के हैं, वो सोशल मीडिया में बयानात देना अच्छी बात है, आप बयानात दे दें, तालीम के हवाले से शऊर आएगा, लेकिन सिर्फ बयानात देना काफ़ी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें अमली तौर पर काम करना चाहिए। वो इस सूरत में मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले अपने ज़ात से कुर्बानी का आगाज़ करें। अपने बच्चे जो हमारे ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने BA की है, उसके बाद एडमिशन के लिए इसी कैंपस में दाखिल करवाएं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अब वहाँ फैकल्टी का इशू है, तो लाजमी बात है अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे, एडमिशन्स नहीं लेंगे तो फैकल्टी कहाँ से आएंगे? जब स्टूडेंट एडमिशन लेने की तादाद ज़्यादा बढ़ेगी तो खुद बहुत तमाम चीज़ें खुद बहुत हो जाएंगी। अब वीसी साहब भी, डॉक्टर शाहनवाज साहब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस दियामर में तालिबी एमरजेंसी भी है। इस हवाले से मेरी तजवीज़ है कि सबसे पहली बात तो है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को इस कैंपस में एडमिट कराएं। ठीक है, एक मिनट ज़रा तजावीज़ से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी है, फीसें किस तरह हैं, मतलब जितनी गिलगित में है या नॉमिनल इतनी है ना, पंजाब या दीगर पाकिस्तान के इलाकों की निस्बत कम है? फीसें कम भी नहीं, बहरहाल जो स्टैंडर्ड फीस रेशो है यहाँ पे वही फीस है। मतलब कम पड़ेगी ना। अगर कोई जिलात से जाके फैसलाबाद में पढ़े, कराची में पढ़े या इस्लामाबाद रावलपिंडी में पढ़े, उसके मुकाबले में तो HEC का जो अप्रूव्ड फीस का रेशो वही है भाई। हॉस्टल फैसिलिटी और टीचिंग हॉस्टल है सच फिलहाल हॉस्टल का वो नहीं है, लेकिन रिसेंटली वापडा ने एक MOU साइन की है डॉक्टर शाहनवाज के साथ कि वो जो हरपेन दास में जो एक बिल्डिंग बनी है प्राइमरी स्कूल, जो लेटेस्ट मॉडल है, वहाँ पे जो फीमेल सेक्शन है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। इस हवाले से एक VC साहब ने, डॉक्टर शाहनवाज साहब ने मिल के एक वापडा की खिदमत में एक प्रपोजल सबमिट की है। अच्छा। अब वो हमारे दियामर के बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रिविलेजेस की ज़रूरत है। वो ये कि हॉस्टल फ्री हो, एडमिशन फ़ीस और दीगर फ़ीसें वो फ्री हों और ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो, प्लस जिसकी इसकी मेंटेनेंस वगैरह, वो एक ही सूरत में मुमकिन है। मैं एक तजवीज़ के तौर पर सामने रखूँगा, बिलखुसूस जो हमारे वापडा यहाँ हमारी FCNA हेडक्वार्टर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर साहब, वो दियामर को प्रायोरिटी रखें, क्योंकि एक पढ़ा लिखा दियामर, एक पुरअमन दियामर, एक बाशऊर दियामर पूरी गिलगित बल्तिस्तान के मुफाद में है। गेट पे होने के नाते अगर वहाँ लोगों में शऊर का लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ के लोग वेल एजुकेटेड होंगे, तो इसका फ़ायदा पूरे गिलगित बल्तिस्तान को बराह रास्त पहुँचेगा। इस हवाले से मेरी तजवीज़ ये है कि आपकी वसातत से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया कि वापडा की जो CBM के तहत स्कीमें चल रही हैं, वह जो टोटल कास्ट है दियामर बाशा डैम पे, उसके कुछ परसेंटेज का CBM के लिए कुछ फंड एलोकेट किए। मेरे अंदाजे की मतलब कोई
6.25 अरब रुपए रखे गए। वहाँ वो जो डैम अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे सच वहाँ अभी तक बिंग डैम इफेक्ट हमारे एरिया में तो कोई काम नहीं हो, और उम्मीद है कि करीब हो जाएगा। उस पैसे में से अगर खतीर रकम इन जो 3 चीज़ें मैंने गिनी है, फीसें फ्री हूँ, उस ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फीस, इस मद में अगर वो सर्व करे तो ये न सिर्फ कैंपस कामयाब हो सकता है बल्कि इन फ्यूचर ये दयामर यूनिवर्सिटी बन सकती है, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ दयामर का दर्जा हासिल कर सकती है। सही, आपकी यकीनन जो सजेशंस हैं वो हुकूमत तक और अरबाब इक़्तिदार इख्तियार तक पहुँच गई हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि इसके ऊपर संजीदगी से गौर करेंगे। मुझे ये बताइए, फीडिंग यूनिट्स की आपने बात की, तो स्कूल का जो निज़ाम है, स्कूल की जो तालीम है पूरे दयामर में, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, फिर आगे कॉलेज, ये बेहतर जब तक नहीं होगा तो बच्चे ऊपर कैसे आएंगे? ये इस हवाले से क्या कहते हैं आप? इसमें पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। ठीक है, बेहतरी इन द सेंस ये कि अभी जो टीचर नए अपॉइंट हो गए हैं वो भी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, NTS के टेस्ट के तहत FPSC से आए हुए हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। दूसरी बात यह कि अभी भी टीचर्स की कमी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमी है, ठीक है, और कंसर्न सब्जेक्ट की वो है। तो मुझे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। तो टीचर्स की कमी और बिल्डिंग्स की जो इश्यूज थे हमारे, वो तकरीबन सॉल्व हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता इसी स्टेप के तहत चलेंगे तो वहाँ जो कमी है, मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो पूरे हो जाएंगे मुस्तक़बिल करीब, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर दयामर को तवज्जो, अब होम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे गिलगित कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ दयामर में है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब और ये जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं वो दयामर को प्रेफर दे रहे हैं, जिस पर हम बीइंग अ दयामरियन मैं उनका मशकूर हूँ। सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात यकीनन मैं भी रिट्रेट करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि ये यूनिवर्सिटी बंद हो रही है या तालीम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम से भी हमारी गुजारिश भी है, और बल्कि हम क्या गुजारिश कर रहे हैं, खुद ही उनको ये समझना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि इस तरह की अफवाहें दयामर के किसी तरह इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्कुल। फैज़ साहब, थोड़ा सा आपने जो आप सोशल वर्क करते हैं, कुछ स्कूल आप चलाते हैं, क्या है मुख्तसर बताइए, उसके बाद आपका एक अगर मुमकिन हुआ तो शेयर भी सुनेंगे, ज़रूर, फिर वाइंड अप करेंगे। मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मौलिम हूँ। वो मेरा एक शेर है कि इल्म के बाइस से इंसान अशरफुल मखलूक है, वरना इंसान और हैवा में तमीज़ मुमकिन नहीं। वहाँ प्राइमरी ये जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है दयामर में, उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, तो हमने भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट इस हवाले से शुरू किया। मेरी एक छोटी सी तंजीम 2006 से उसको हम चला रहे हैं, सिपाडवा के नाम से, शाहीन पॉवर्टी एलिवेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन एसोसिएशन के नाम से। तो उसमें छोटा सा कंपोनेंट हमने शुरू किया एजुकेशन का, और पॉवर्टी रिडक्शन, जो हमारे वहाँ के गरीब बच्चे हैं उनको फ्री तालीम देने का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। और उस पर जो ग्रास अभी तो इनिशियल स्टेज पर, इंशाल्लाह उसको आगे हम लेके जाएंगे। अभी कितने प्राइमरी तक? 120 के लगभग ऐसे स्टूडेंट, बच्चियाँ जी, दोनों मिला के, छोटे बच्चे इस तरह कुछ हैं। प्राइमरी तक है? जी, प्राइमरी तक है। 3री क्लास तक अभी शुरू, 3 साल हो गए, तो आगे वो सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह। राइट। कोई शेयर अपना, कोई जी ताज़ा कलाम सर आँखों पे, या जो आपको पसंद हो? देखते हैं सर, ये एक शायर के लिए सबसे अहम सवाल ये था कि आप कोई कलाम पेश करें तो वो भी अपना पसंदीदा। वैसे कोई शायर क्या, अपने तमाम कलाम तो उनको अपने पसंदीदा ही होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि बच्चे सारे, वही बात उनके बीच कोई तफरीक नहीं की जा सकती है। एक पुरानी सी गज़ल है सर जी, इस गज़ल में मैंने ये कोशिश की है कि गज़ल बनने के मुहर्रिकात, असबाब और वजूहात, किन वजूहात से गज़ल बनती है, तो उनको ज़रा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है आपकी तवज्जो के लिए। पुरानी सी गज़ल है, दर्द सीने में मचलता है तो बनती है गज़ल, दर्द सीने में मचलता है तो बनती है गज़ल, गम कभी करवट बदलता है तो बनती है गज़ल, और देखकर जलता हुआ गुर्बत कदा अपना गरीब, देखकर जलता हुआ गुर्बत कदा अपना गरीब, गम के मारे हाथ मलता है तो बनती है गज़ल। काफ़ी तवील गज़ल है, बीच से अशार आपको पढ़ता हूँ, शायद टाइम कम। और एक शेर है तो तलब है आपका, शायरी कोई खालाजी का घर नहीं शायर का दिल, शायरी कोई खालाजी का घर नहीं शायर का दिल, दर्द की भट्टी में जलता है तो बनती है गज़ल। और आखिरी शेर अर्ज़ करके आपसे चाहूँगा, एक हद में गम रहे तो दर्द बनता है हलीम, जिसको हमारी शायरी ज़बान में मक्ता कहा जाता है। एक हद में गम रहे तो दर्द बनता है हलीम,
حد سے جب باہر نکلتا ہے تو بنتی ہے غزل. کیا بات ہے حلیم فیاضی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم یقیناً مزید بھی سننا چاہیں گے, بلکہ کسی پروگرام میں سننا چاہیں گے آپ کی کچھ شاعری. اس پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.